हाँ जी, हाँ हाँ कोई जी। बात नहीं। हाँ चलिए, कोई नहीं, चलिए, कुछ ये हो जाता है बीच बीच में। ये स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, नीलम जी, ये स्क्रीन शेयरिंग जो है थोड़ा सा कर यस, देंगे? अलाउ कर दिया, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, एक मिनट। हाँ जी। So, Doja Cat is a very famous singer, songwriter, and rapper, multiple talented. Just you see here, the stem starts from the top and has a loop here, and it is making a parabolic loop here. Again, second parabolic loop and Doja, and it goes very fast. सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप बस थोड़ा सा माइक अलग रखेंगे क्या? बहुत सारा डिस्टरबेंस है तो हम बाद में नहीं सुन पाएंगे। सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। नहीं, कोई नहीं। अभी नहीं, किसी ने चालू करके रखा बैकग्राउंड, उसका आवाज आ रही है। एक ही बार तो गई हूँ मैं। ये बाकी लोग सबको म्यूट, करें। जो भी एडमिन है सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, किया किया। हाँ हाँ, एक्चुअली उसी डिस्टरबेंस वहीं से आ रहा है। तो लेटर डी में यहाँ पे देखिए, जो लेटर डी का फॉर्मेशन है, टोटल वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्मेशन, सिंगल स्ट्रोक में पूरा नाम लिखा हुआ है with two parabolic loop. And the speed is very very fast speed and simplification. It is the inbuilt creative energy gap issues with father, because in the second stroke जो है वहाँ पे एक नोट बना हुआ है that is what has a relationship issues with father. Dave Chappelle is a film theater personality. If you see here in the Dave Chappelle, the letter, if you see this D, again the same way, here in the D formation has a formation of D first, and the second stroke goes to the left, and here in Doza the second stroke goes on the right side, just opposite to this. This is Dave Chappelle is just opposite to that. Tall squeezed C with crossing, letter is the biggest at top 10. And if you see, there is a lot of formation of the parabolic loops here. So, and very the vertical up and down is very, so vertical up and down is basically emotionally driven, very fast, squeezed, and very personalized, and working too much closer. And because the D and the C is a very big, so it represents the oratory skills. Yeah, he is a stand-up comedian. सर उनकी बेस लाइन तो बहुत बिगड़ी हुई है। बहुत बिगड़ी है, बिकॉज हाँ, बहुत, जब भी बेस लाइन बिगड़ी होती है तो देयर आर मेंटल इश्यूज, एंड दिस फेलो हैज अ लॉट ऑफ पर्सनल अब्यूज, दैट्स व्हाट हियर इट इज देयर, पर्सनल हर्ट एंड अब्यूज इन सोसाइटी. But this fellow has a very good oratory skills and help persons to step further, because end stroke आगे ज्यादा हुआ. Okay, sir. David Ginola is basically, again here if you see, David Ginola starts first the loop. Just see, it is a third variety of D. It starts from the left and make the D, and from there it again move away to the letter formation with very micro scribbling middle zone with circular dots. So this is
how this fellow is a unique and different non-confronting style, because this fellow is a simplification without basically crossing the D strokes are not crossing the, in fact the rest of the name will be part of it, so it is not a negative sign. सर So इसका जो हाँ स्ट्रोक है अंदर जा रहा है, अंदर पियर्स कर रहा है, हाँ, डी अंदर को पियर्स नहीं अंदर कर रहा, पियर्स नहीं तो कर रहा, अंदर अंदर, से निकल रहा है, अंदर से निकल हाँ रहा है, तो हाँ तो अंदर से अंदर से निकला निकल भी रहा है। है, बाहर से अंदर नहीं जा रहा, और अंदर में भी ओके, जो डी का जो इनिशियल स्ट्रोक है वो कट नहीं कर रहा. but D itself is getting cut by the rest of the letters of David. या हाँ तो यस, तो इट इज अ सेल्फ हार्मिंग, नॉट फ्रॉम द सेल्फ, वो डिस्ट्रक्शन नहीं है, it is a hiding, it Okay. is a it is not have a negative meaning, it is have a positive meaning, it is और it उसका will जो he लास्ट डी hide है the things. डेविड का, या पर डेविड का जो लास्ट डी है वो इनवर्ड की तरफ टर्न होकर फिर जेनोला का जी बना रहा है, तो राइट राइट, वो मिरर इमेज जैसा जो बन रहा है उसका हाँ क्या हाँ, होगा? एक्चुअली वो आप जो देखा जाएगा ना, वो डेविड का जो डी है बेसिकली, वो डी जो है एक स्ट्रोक्स में गायब हो गया. जब आप जो जी जो आप देख रहे हैं ना, जॉर्ज बुश और जो इंग्लिश लोग का देखते हैं ना, ये इस टाइप का जी बनाते हैं. एक्चुअली ये इसका जो डी का जो स्टेम यहाँ से इधर से यहाँ तक गया, यहाँ तक ही डी है, इसके बाद वो जी फॉर्मेशन चालू हो गया. ठीक है, ये जी है एक्चुअली, ये जॉर्ज बुश का भी आप देखें तो जी ऐसा ही बनाते हैं. अंग्रेजी लोग जो है, अमेरिकन लोग इस टाइप का जी बनाते हैं. सो इट इज नॉट जी, इट इज बेसिकली जी, गिनोला का जी है वो, यहाँ से जी स्टार्ट हो गया, डी खत्म हो गया इस पॉइंट पे. ओके, अच्छा, right. So unique and different confronting style with the roots in place. High intellect and solution provider, good basic instinct and drive with legs, because the lower zone dynamics are very superior. And this fellow is a sports person, definitely. In sports you have to have a very strong footwork and leg work. So that's what the famous footballer. And Dua Lipa, here if you see the again different type of D. Start with the stem with forward slants, make a small knot here in the bottom, then goes back to again touching the same. It means that this fellow has issues with father, and but he with that he still goes to him only, and it crosses up, it is mother. So there is a, in spite of mother relations also, she goes to the father. This is how you, if you see this in history, you can find the same thing. Yeah, through her maternal grandmother, she is a Bosnian descent. This is already there in the history. Okay. David Bowl. सर एक मिनट, वो जो लिपा का जो आपने पढ़ा ना, उसमें एंड में एक एक्स जैसा बना है, लाइक त्रिशूल लाइक, वो क्या है? अंडरस्कोर क्या है? Underscore basically they are actually they wherever there is after signature, wherever the put dot or square, it is a exclamation or whatever marks are there, it shows that words ends with here, no further question. And here basically she is not mentally stable and problem, because if you see the pressure swings from the D to P Lipa, there is a heavy pressure swing, so there is a very heavy mood swings, and because of that heavy mood swings, that mental health issues reflected in the form of cross. Actually this writer wants to put a dot, but he is not, because of the stress he put the cross basically. एंड साइकोलॉजी का भी जो साइन आप देखेंगे, जो साइकोलॉजी के साइन भी देखिए, मोरलेस इसी टाइप का, त्रिशूल टाइप का आ रहा है. इट इज नॉट प्लेन एक्स like it's a curve and write this, and this is the sign of psycho also. If you see the psychology symbols, it is similar to this one. ये पता नहीं था सर, थैंक यू. साइकोलॉजी सिंबल, अच्छा. हाँ राइट. तो सर इसमें साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकते हैं?
हाँ है ना, उसमें स्विंग बताया ना, प्रेशर स्विंग जो है मूड स्विंग है। जैसे डी का देखिए कितना लाइट है और लिपा का बिल्कुल हैवी है। जस्ट जस्ट सी हाँ जी। विद इन द सर वर्ड टू त्रिशूल की वर्ड। वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं? नहीं, नो नो, साइकोलॉजिकल वजह के से त्रिशूल। सर डी में जो ओके लूप ओके है नीचे में, उसके बारे में बोलिए सर, मैं हाँ मिस कर गया। वो मिस कर गया। वो एक्चुअली फादर का इश्यूज है बेसिकली। देयर इज अ father the knot at the bottom is basically the issues related with the father. If you go through the सर एक history चीज with, और पूछना, हाँ मदर से भी कॉन्फ्लिक्ट है क्या? ऊपर वाला जो मदर डी को का क्रॉस लूप कर, है हाँ मदर को क्रॉस कर रही है बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सर, क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है? मतलब रीडिंग क्रॉस में का क्या मतलब है? रीडिंग मतलब फाइट है, मतलब ही इज नॉट एग्रीड, इज नॉट एग्रीमेंट, अच्छा आर्ग्यूमेंट but not आर्ग्यूमेंट। arguing and problem is two different things. ओके Argument ओके may not be happy and may not be okay with that, but it is not fight. It is not dissatisfaction. It is okay. It is your view. I am not agree with you. Disagreement. Crossing is that one. And David Bowie, if you see here, this is very interesting signature, because here the writer writes B first, then D. So here writer priorities change. He put himself second. That's why D, the priority becomes second seat and the family becomes the first seat. So this is how the your thought process uh, reflected in the handwriting. So he more whenever he does, his aim is for his family first, and for himself it is a second. So this is David Bowie is a very good singer. सर उसका हाँ डेविड का जो डी बना है ना, वो मुझे कलर हाँ पैलेट जैसा दिख रहा है, कलर पैलेट जैसा उसका हाँ, शेप दिख रहा है। हाँ राइट, वो सिंगर है ना, इसलिए तो आर्टिस्ट है ना ये। बट उसमें ओके। कलर, बट उसमें आपको रिदम एंड फ्लो दिख रहा है, तो वो फ्लो है, वो जो सिंगिंग है, इनकी सिंगिंग स्टाइल वगैरह देखेंगे तो उसमें वो चीजें आपको पता लग जाएगी। ओके वो सर। जिस किस्म का राग वो लेते होंगे ना, उसमें रिदम में जो अप एंड डाउन होते हैं, तो वो वही चीज इसमें जब आप, और इसमें अब ये एक्चुअली फील्ड बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है। अब इसमें इनके आपको गाना सुनिए, इनके बारे में चीजें पढ़े, तो देन आपको you are able to each and every stroke you are able to connect how इनके जो काम है वो किस प्रकार से और वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसमें। और अब सर गाने में इनका भी एंडिंग स्ट्रोक इतना लंबा है, एंडिंग स्ट्रोक ड्राइव, इतना जो लंबा। राइट। अब इनके गाने आप जब सुनेंगे ना, तो इनके गाने के एंडिंग में भी वो बहुत खींच के, जैसे हम लोग 3 ताल और 3 बार लेते ना, जिसको तिरकट बोलते हैं, उस टाइप की चीजें होंगी इनके उसके गाने में। हाँ हाँ हाँ, तो अब ये एक्चुअली बहुत, अब जो रिसर्च वालों के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इनको इनकी ड्राइव बताती है। जैसे आप सिंगर की भी आप सिग्नेचर्स आप देखेंगे, अनूप जलोटा का आप जब देखेंगे तो उनका, अनूप जलोटा का जो टी है बहुत लंबा है। अब अनूप ओके। जलोटा के भजन सुनिए और आप इनके भजन सुनिए दूसरे सिंगर्स के, आपको पता है, क्लियर पता है, पता चलेगा। बहुत सुना खींचते हैं है। अनूप जलोटा जी। हाँ, तो हाँ हाँ बहुत वो खींचते हैं। स्टाइल आते हैं। हाँ, बहुत खींचते हो। तो ये चीज वही है, इनके सिंगिंग, इनके गाने में भी आप वो देखेंगे तो वही चीज आ जाएगी। Sir, D is the B letter B, the Bowie is full of parabolic strokes. But it is rhythmic. It is rhythmic and Okay, it okay, is rhythmic and the pattern is not similar sort of thing. It is a changing basically. If you see, okay. it is पहला बड़ा है, फिर थोड़ा छोटा हो गया है, देन ये किसी को काट नहीं रहे हैं, हार्श नहीं हो रहा है इसमें। देन Okay. उसके बाद डी में भी पैराबोलिक है, बट वो थोड़ा सा कर्वी हो रहा है। Yes, yes. कर्वी हो रहा है। प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है पर ठीक है। हाँ ठीक है, वो विद इन 15% वेरिएशन में हम उसको वेरिएशन नहीं मानते। दुआ Yes. लिपा में जैसे हम बोलते हैं, उसमें जो वेरिएशन है कम से कम 5 टाइम्स का वेरिएशन होता है, बिल्कुल फीबल से लेके बिल्कुल, अगर 1 to 10 स्केल में अगर हम नापें तो दुआ लिपा में जो 1 और 10 है, इसमें आप देखेंगे तो जो डिफरेंस आएगा 4 और 5 के बीच का ही डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा फर्क।
सर इनकी बेस लाइन ठीक मानी जाएगी क्या? इनकी बेसलाइन ठीक मानी जाएगी, क्योंकि बेसलाइन दोनों आप देखिए यहाँ पे जो डी यहाँ पे जो तो आ रहा है, हाँ, दोनों के सेम Okay. लेवल में आ रहे हैं, तो यहाँ पे Yes. बेसलाइन ठीक मानी जाएगी। ओके ओके सर। ओके, ये देखिए डियोंटे वाइल्डर। इसमें अभी देखिए यहाँ पे जो डियोंटे है, इसमें जो डी है, जो पैराबोलिक लूप है, अब जैसे आप लोगों ने बताया था पहले बी में जो देख रहे थे, उसमें जो पैराबोलिक लूप है ना, वो इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग लेटर बी, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि यहाँ पे वो जो लेटर डी, यहाँ पे जो पैराबोलिक लूप है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इट लुक्स लाइक ओ। सो दिस इज clear indication कि this fellow is not doing the natural and desired trait related things which God has given. He is having some different mindset, and definitely if you see the another Deontay Wilder का जो again डी आ रहा है, वो ब्रेक अवे डी आ रहा है, मैनिएक हो रहा है, और उसमें भी वो डी नहीं लग रहा है। So this is clear indication of negative traits, and this is definitely if you see this person is a violent outburst, and if you see here in the red, the woman had swollen eyebrows, possibly broken nose and cut lip. So this fellow goes to the very extreme level sexual abuse to the opposite sex. Okay. Yeah, now if you see here, this here has again film personality, but here D is a triangular D with pasty, speedy and legible placed eye dot with microzone and legibility. Legibility is basically indication of the branding, positive branding. And D, if you see this very bigger length and width wise, so this fellow lives a larger life, talent at par, high maturity, go-getter with quality, and angular strokes are there, so he took the pain and has a good oratory skills. So he's a very good actor. सर पेरेंट्स से दोनों से ही डिटैच्ड है ना, क्योंकि ऊपर का हाँ जो राइट, बिल्कुल 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 सही बोला, बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही। सर इसका अर्नर्स का ए लोअर केस है? हाँ लोअर केस है, लोअर केस है, तो that's ये why किडनी बीन oratory जैसा, oratory सर ये skills के लिए आ रहा है। हाँ लोअर केस ए मुझे किडनी बीन जैसा दिख रहा है, तो उसका क्या है? हाँ किडनी बीन जैसा ही दिख रहा है, तो उसका इश्यूज होंगे, वो उसके लिए फिर हम देखने पड़ेंगे और सिग्नेचर्स देखने पड़ेंगे जहाँ पे वो तरीके से निकल के आएगा। सर उसको स्टैबिंग नहीं बोलेंगे क्या? ए में जो लाइन दिख रहा है, हाँ वो स्टैबिंग है, वो झूठ बोलने वाली बात, झूठ बोलने, लायर टेंडेंसी दिख रहा है, अभी मेडिकल हेल्थ नहीं दिख रहा है, बट फिजिकल लाइंग टेंडेंसी दिख रही है इसमें। सर ये जो स्टैबिंग है वो ऑपोजिट सेक्स के साथ एंगर हो, ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? नहीं वैसा नहीं, अपोजिट सेक्स के साथ अगर आपको देखना है तो डब्लू देखेंगे, डब्लू का जो नीचे का बॉटम का जो है वो पॉइंटेड होगा इंस्टेड ऑफ राउंड वन, इंस्टेड ऑफ राउंड वन, ठीक है। Dakota Johnson, if you see again here, is again different style, but it has a concentric parabolic loop, if you see, and no pan lift. It means ziddi and definitely a negative energy toward of sex drive and all. So this is strong libido and influence. सर इसके मल्टी स्लैंट भी है? हाँ जी, मल्टी स्लैंट है इसमें। हाँ मल्टी स्लैंट भी है, तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। दैट्स व्हाई if you see the red line is a co-creative director of Mood and Sexual Wellness brand. So ये फेमस है, सेक्सुअल ब्रांड्स के बहुत बड़ी एम्बेसडर हैं। जो लूपिंग है वो लाइन का नहीं है क्या? लायर का नहीं, वो हाइडिंग है एंड सेक्स रिलेटेड चीजें हैं उसमें। ओके, पैराबोलिक है इसमें। हाँ, so they have
हाँ, तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होंगे इनके, एंड द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। एंड लग्जरी फैशन ब्रांड जो गुस्सी है, ये उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। गुस्सी आपने नाम सुना होगा, GUCCI, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। हाँ सर। Again, here if you see the baby, here D is like a uni of a female. So this fellow is again negative traits. Another, if you see the pasty things going lower the strokes going strokes in the lower zone without return. सर मुझे तो आंख दिख रही है। आंख दिख रही है, खड़ी हुई है ना, लेटी। आंख तो हॉरिजॉन्टल होती है जी। अब तो ये this if you see this, he is also went to the claim that gay fans do not have HIV/AIDS. So this fellow is having a very negative sexual life and efforts and vision, homeopathic, so thoroughly corrupted, influenced by bad libido actions. So this is what this is the D-baby is. Here if you see the हैरी पॉटर को जो आपने देखा होगा, ये हैरी पॉटर के जो एक्टर हैं डैनियल रेडक्लिफ। अब इनके दो सिग्नेचर देखिए, पहला वाला जो डी है क्लैरिटी है, सिंप्लीफिकेशन है, बट यहाँ आके सेकंड उसमें लूप फॉर्मेशन हो गया है। डी हैज बी चेंज्ड। सो अकॉर्डिंगली द पर्सनालिटी, जो बचपन में जो प्लेन सिंप्लिसिटी थी, क्रिएटिविटी थी, वो यहाँ पे आके वो चीजें खत्म हो गई। एंड इफ यू सी देयर इज नेचुरल जो फ्लो है वो खत्म हो गया है। जैसे डेनियल में यहाँ पे क्लियर रेडक्लिफ में जो था वो चीज नहीं रही। तो मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा होने के बाद भी उतना ही अच्छा रहे, वो मैच्योरिटी होने के बाद बहुत सारी नेगेटिव चीजें, बैड इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, एंड द सिग्नेचर आल्सो बिकम्स अकॉर्डिंगली। बहुत इम्पल्सिव हो गए और मल्टी स्लैंट है सर। हाँ, मल्टी स्लैंट हो तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो गए। इवन इनका आप देखिए, जब इवन पोस्चर आप देखिए, इसमें रिलैक्स है, इसमें जजिंग बिहेवियर है, हाथ ऐसे करके देख रहे हैं, एंड ही इज आर्गुइंग एंड डाउटिंग समथिंग, सो एवरीथिंग चेंजेस, एंड सो द सिग्नेचर इज आल्सो चेंज। सर बेसलाइन भी देखिए क्लीन नहीं है। बेसलाइन, मतलब हाँ वो लिखा है मैंने, इरेटिक बेसलाइन इज अ मेंटल हेल्थ इशू, डिस्लेक्सिया फ्रॉम फैमिली साइड से है, ये दिया हुआ उसमें। सर अगर छोटे वाले डैनियल को देखेंगे उसका भी, लेकिन स्लैंट रेडक्लिफ में आप देखिए कि उसका भी बेसलाइन जो है वो ठीक नहीं है रेडक्लिफ में, छोटे वाले का, चाइल्ड का। बट वो उतना ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं हो रहा है, वो कॉनकेव हो रहा है। कॉनकेव मींस ही इज एक्चुअली, ये तो एक्टर हैं, ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं, ये तो खाली सोचने वाले हैं, तो करने वाले हैं। बेसिकली ही इज नॉट डायरेक्टर समथिंग। So, सर इसका फर्स्ट सिग्नेचर जो है मल्टी लेवल है, बट सेकंड वन इज नॉट दैट मच मल्टी लेवल, थोड़ा सा ऊपर नीचे है पर। हाँ, तो उसका ये क्या रीडिंग होता है? इसका ही वाज reading ये होगा, डिपेंडेंट। राइट, जो फैमिली सपोर्ट था, बाद में फैमिली से अलग हो गए, ये अपने पे आ गए, तो इसलिए अपने सिंगल लाइन पे जा रहे हैं। फैमिली सपोर्ट खत्म हो गया, सिंपल। ग्रोन अप हो गए तो अपना सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो फैमिली टेक द। सर आपने इसमें लिखा है फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स, पर यहाँ कम दिख रहे हैं उसकी सेकंड सिग्नेचर में। सेकंड सिग्नेचर में ऊपर जो देख रहे हैं ना आप, जो डी का ऊपर आप देखें, वही चीज वहां से फर्स्ट डी जो, लेकिन उसमें तो लूप बना हुआ है। बट उसमें ड्राइव तो है ना, उसमें सेम चीज है, यहाँ भी है वहां भी है, दोनों जगह। ओके ठीक है। इनफैक्ट अब आप देखेंगे रेड क्लिफ में, जो आप देखेंगे जो रेड क्लिफ का जो आ रहा है यहाँ पे ऊपर, जो अपर जोन डायनामिक्स बहुत ज्यादा हो गए हैं यहाँ पे सेकंड सिग्नेचर में। इवन दो इट इज नेगेटिव, बट अपर जोन डायनामिक्स आर देयर, जबकि बचपन वाले में अपर जोन डायनामिक्स ज्यादा नहीं है। वो दिमाग नहीं लगाते रहे ना, बचपन में प्लेन रहता है, जो आ गया कर दिया, ज्यादा सोचते भी नहीं थे। बट यहाँ आके ज्यादा दिमाग हो जाता है, जब तो समझ में भी आती है बहुत सारी चीजें, गलत करते हैं, देन उसका फिर हम उसकी पूजा पाठ और उसको फिर दूसरे से कंपनसेट भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वेरी मैच्योर्ड एंड कैलकुलेटिव। तो वो चीजें फिर अगेन वो चीजें यहाँ पे आ रही है।
philanthropy. सर इसका रेड क्लिफ के जो लास्ट एफ और ई जो है अंदर अंदर लूप इन लूप बन गए हैं, उसका क्या रीडिंग हाँ। होगा? ये एफ जो है बेसिकली, एफ देखिए फ्लूडिक एफ है एक्चुअली। ये जो भी जी। कर रहे हैं वो उसमें एंजॉयमेंट ज्यादा कर रहे हैं। ये तो उनका ट्रेड था जो कि बड़े होने के बाद भी ये जो एफ है फ्लूडिक एफ है। फ्लूडिक एफ तो जो होता है एंजॉयमेंट का होता है, बट उसमें जो बेस लाइन है पहला एफ और दूसरा एफ, अब पुराने सिग्नेचर में आप देखेंगे तो सेम लेवल पे। यहाँ पे पहला एफ जो है थोड़ा सा नीचे है, ऊपर ये दूसरा ऊपर चला गया, फिर और ऊपर जाके कवर कर दिया। तो एटलीस्ट ये जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, दे वांट टू लिमिट टू देमसेल्व्स ओनली बेसिकली, नॉट टू अदर्स। यहाँ पे आप जो ई है आप देखो नीचे जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो ई है ऊपर जाके लूप बन गया वहाँ पे। So this is how सर एफ का ऊपर नीचे होना, नीचे की तरफ से थोड़ा लेवल का हायर एंड लोअर होना, उसका कोई लैग इश्यू होगा? लैग इशू नहीं है। ये एक्चुअली जब भी बेस लाइन वेरी हो रहा है ना, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बेस लाइन वेरी ज्यादा और इरेटिक हो रहा है, इरेटिक बेस लाइन होगा, इट मींस मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, एंड दिस फेलो इज सफरिंग फ्रॉम डिस्प्रेक्सिया फ्रॉम फैमिली साइड। ओहो। तो ये लिखा हुआ है डिस्प्रेक्सिया। सर डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया मेंटल हेल्थ इशू। सॉरी मैं ढूंढ लूंगी, डोंट वरी आई विल फाइंड आउट। ये डोंट लिखा वरी, माइल्ड, नेक्स्ट। हाँ, माइल्ड फॉर्म ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके सर, थैंक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, माइल्ड फॉर्म नो ऑफ प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल। नेक्स्ट वन। And Drew Barrymore. Drew Barrymore is basically actress. Here if you see again there, जहाँ भी मैंने दो सिग्नेचर दिए हैं, it means there is some personality shift in the personality traits. Here if you see D is a very firm, squeezed, vertical. Here it is a horizontal more, and the loops becomes very prominent in the D. So there is a two total different mental health pictures basically. Especially the second one is have a lot of issues. If you see here in the childhood, there is a sharp change here and insight. So childhood abuse are there, and growing libido influence, because libido is in the lower zone. So when she grows up, then she realizes the libido portion is again here. If you see here in the Z loop here, same thing is reflected in the personal. It is in the secondary. In the childhood, she may not be realizing those things, but in while grow up, she realize all those things also, and that becomes a part of his personality. So this D loop is shifted to the D here in upper and lower here. So it is a strong growing libido. ड्रू में ड्रू में जो W के बाद जो अपर एंड स्ट्रोक है, उसका क्या रीडिंग होगा सर? वैसे बहुत देखे मैंने। हाँ, वो अपर रीडिंग जो देखिए, जो W है सर्कुलर स्ट्रोक है यहाँ पे। So she has a very soft, not very crushing style of doing the relations in the relation, very soft way to deal with the relations, and that is what this fellow has a if you see here, Barrymore said that he has always considered herself a bisexual, and she said, I love woman body only, it's not the male body. So he's a same sexual relation with the same sex. I think a woman and a woman together are beautiful. And definitely if you see here the baselines and everything, even the slants and the pressures and the formation, the blur, and suddenly goes to the up. These are all the traits which is basically incoherent, and there is no control over your actions. So these are all the mental health issues.
the trouble, growing libido influence, struggle. These are the same thing is reflecting being a woman is like exploring your own body, but through someone else. So this again the flight. This is, if you see, it is the flight. So this fellow has his own fantasy. He lives in own fantasy with uh, child abuse and all those things which happens in the early age. So same thing is reflecting and growth and reflecting in these forms. तो सर इसमें हेल्थ इश्यू क्या आ सकते हैं? अचानक से बेरी मोर का मोर अपर चला गया। ये अपर फ्लाइट है, दिस इज लाइक ए फ्लाइट। फ्लाइट मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको हवा में, जैसे फ्लाइट में हवा में चले गए आप आसमान में। सर ये मोर का एक माउंटेन एक्स्ट्रा भी है, मतलब एम जो है उससे एक जो माउंटेन होता है वो एक्स्ट्रा भी है माउंटेन, इसमें। हाँ हाँ राइट। इफ यू सी दिस इज एक्स्ट्रा है, वही है। तो एक्चुअली दिस फेलो, दैट्स व्हाई इफ यू सी दिस वर्ड, he like exploring your own body and enjoying the same thing. Basically if you see the M है, W का reverse है, so the opposite sex का ही जो meaning है वही एक different way में and more staying more in that relations basically. That's why that more is reflected in the extra hump here. Sir, letter W is for women or for opposite sex? If a male Opposite is sex. writing it, No, so if a male is W- writing it's for Ah. women. But if No. a female is writing, is it for men? Yes, it is for opposite sex. But if you see here in the first letter, it is a more linear strokes are more prominent here. You see, and the pressure is very prominent. In the second stroke, it is more curvy and the pressure is light. So then here it goes more feminine. सर ये जो डी है, इसमें जो डी का लूप है वो स्टेम से टच नहीं हो रहा है। हाँ, तो सर so इसका that's क्या why, होगा? हाँ, that's what basically जब ये grow up होने के बाद मदर से दूर हो गए basically, तो गैप आ गया। Okay. Okay. Sir, do you want to take a break now? एक मिनट, हाँ चलिए, हाँ एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम स्टॉप। तब तक आप लोग बात करें, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो के आता हूँ। Okay. आपस में बात कर लें। Yes. So let us start again. Everybody is ready? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So now we come to the lesson 2 is a very highly intellectual in academics and very famous personality of for peacekeeping efforts in the South Africa. The initial stroke process here if you see this. He's basically the childhood. Basically, the starting stroke is basically if someone is asking where is the childhood. Childhood. सर आपका आवाज काफी धीरे आ रहा है। Now it's okay. हाँ, fine. Okay, so the starting stroke is basically start of your childhood. Basically, start of your journey in the life. A whole signature reflects your whole life actually. Okay, and that way you can compare with your how far you have lived and what is life is balanced, and you can see accordingly that. So the D starting stroke is definitely it is a crossing door. So this fellow is having a lot of childhood crossing and trouble. This time not at the base. Again here is a it shows the struggle with the father and the family, and you see the frequent dots. The so many dots are there. It means there is a clogging of energy or flow at some point of time. There is a things are stopped at some points. So and it is all over in the
signature as well as writing. Sir, And हाँ बेसमेंट में डी जो है वो भी मुझे किडनी बिन दिख रहा है. हाँ इसमें बिल्कुल दिख रहा है, इसमें किडनी बिन तो दिख रहा है, बट इफ यू सी द डॉट्स इज ऑल ओवर अगेन, सो इट मींस द Yeah. ब्लड इज द फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे छोटे छोटे से पॉकेट्स या बबल्स फॉर्म हो रहे हैं विद हेवी प्रेशर, एंड दिस फेलो इज कॉल्ड एज द थिकनेस ऑफ ब्लड सेल्स. So it is a वही मैं cancer पूछने victim. जा रही So थी कि ये ब्लड में लिखा कुछ हुआ इश्यू होगा इनके, इतने हाँ, सारे so डॉट्स हैं. है ना? हाँ, so ये कैंसर है, ये कैंसर के विक्टिम हाँ, है कैंसर, करेक्ट. ये. मैं वही right. सुनना चाहती थी आपसे. हाँ या बस ये लिखा हुआ, सर वो लिखा हुआ ब्लड प्रेशर किससे होता है? ब्लड प्रेशर. आप बताइए ब्लड प्रेशर का मतलब क्या समझते हैं आप? जितना सर जैसे पानी प्रेशर की टंकी अगर घर के, हाँ आपकी पानी की टंकी जैसे घर के अंदर पानी की टंकी है ना, जितना ऊंचे पे रहेगी उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है. यस हाँ अगर उसमें पानी में टंकी में पानी की टंकी में अगर पानी कम होगा तो क्या होगा? आपका जो पानी आएगा बुलबुला के आएगा, उसमें कभी आएगा हाँ कभी नहीं आएगा, कभी ज्यादा हाँ आएगा. तो यही चीज है, सेम चीज हैंडराइटिंग के प्रेशर में. स्पीड जब लिख रहे हैं, स्पीड बहुत हल्की है, एकदम से जर्क आया फिर हल्का हुआ, फिर जर्क आया फिर हल्का हुआ, जैसे पानी में बुलबुले आते हैं, आप देखें आपने. वही चीज ओके यहाँ पे आपको, आप वैसा सोचेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि इसमें बुलबुले आ रहे हैं, मतलब प्रेशर कम है, पानी की टंकी में पानी कम है. पानी का प्रेशर तो पानी से ही आएगा, पानी ज्यादा रहेगा तो प्रेशर अपने आप बन जाएगा टंकी में. सर, यस सर. तो इसमें डॉट्स दिख रहे हैं, इसलिए आपने ब्लड सेल्स की थिकनेस वाला बोला. राइट राइट बिल्कुल. बिकॉज प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इन ग्राफोलॉजी इज एनर्जी. एनर्जी मतलब प्राण है बेसिकली. अगर प्राण आपके कमजोर होंगे तो जो प्रेशर है कम हो जाएगा. प्राण ज्यादा ज्यादा अटक के इकट्ठा हो जाएंगे तो एकदम से वो सरवाइव करेंगे, फाइट करेंगे बेसिकली सर्वाइवल के लिए. तो वो क्या है, इकट्ठा एनर्जी एक पर्टिकुलर टाइम में इकट्ठी होगी. जब एक जगह इकट्ठी होगी तो वो डॉट्स बन जाएगा, वो फ्लो नहीं रहेगा. सर इनका एम देखिए ना, जैसे बेबी सांप जैसे आगे बढ़ रहा हो. एम, हाँ लेटर एम. हाँ गॉड ब्लेस यू. हाँ मार्च में, राइट. बट यार इसमें जो बन रहा है उसमें मार्च जो लिखा है 2002 में लिखा हुआ है, वो तो फ्लो है उनका, स्टाइल है वो लिखने का, उसमें एंगुलर स्ट्रोक है इसलिए आपको लग रहा है वो. इट इज नॉट तो like, ऐसा एम क्या इंडिकेट करेगा सर? ऐसा एम अगर जो है पॉइंटेड. हाँ इसमें ऐसा एम जो है बेसिकली ये कैपिटल एम लिखा है इन्होंने, बट उसमें इनिशियल स्ट्रोक डाल दिया है. बट उसमें जो हम्प है पॉइंटेड है. तो पॉइंटेड मतलब ये जो बंदे नॉलेज सीकर और दे आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड नोइंग द थिंग्स इंटेलेक्चुअल में, पॉइंटेड बहुत प्रिसाइज रहते हैं, क्वेश्चन करना इस टाइप की चीजें ज्यादा रहती हैं. तो इसलिए जो हम्प है ऊपर के पॉइंटेड है, कर्व नहीं है. तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि दे आर दिस फेलो क्वेश्चंस द थिंग्स एंड ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स इन अ वेरी पॉइंटेड वे. कोई भी चीज है उसमें पॉइंट ढूंढ के उसको क्वेश्चन करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे. एंड दिस फेलो इज ए डॉक्टर, राइट. दिस फेलो इज ए डॉक्टर एंड वेरी गुड एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल है, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है. राइट. हाँ बट सर ही वाज इन पॉलिटिक्स आल्सो. यस. ओके ये नेल्सन मंडेला के साथी हैं. ओके ओके. अब ये स्पोर्ट्स पर्सन हमारे आ गए, डिएगो मैराडोना. अभी आप लोग का ये एम देख रहे हैं आप मैराडोना का. मैराडोना का एम जो है देखिए, अगेन सेम देखिए जैसे आपने पुराने में एम पूछ रहे थे वहां पे सेम एम यहाँ भी है, कैपिटल एम लिखा है विथ लॉट ऑफ स्पीड एंड एंगल. एंड फाइनली वो उसको आगे ले जाके पीछे ले जाते हैं. आपको लग रहा है वो फुटबॉल का शू दिख रहा है आपको? देखिए फुटबॉल का शू बना दिया, ठीक है ना. पहली पिक्चर में ज्यादा एविडेंट है, एविडेंट है. तो जो भी बंदे पैशनेट होते हैं अपने फील्ड के बारे में, वो अपने फील्ड को कहीं ना कहीं ग्राफिक फॉर्म में कहीं ना कहीं बता देते हैं. मैराडोना इज अ लिविंग लेजेंड ऑफ फुटबॉल. तो डिएगो is basically his name, but he keeps himself under the
family, and he is having a strong family bonding. That's why वो connection भी है, और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इनके कंट्रोवर्सीज भी हुए हैं. एंड ये जो नेगेटिव ट्रेट्स लिए हैं, तो दिस फेलो हैज a lot of drug addiction and all those issues with self killing basically. तो वो सब चीजें भी हैं इनमें. But again, he is ultimate authority in the football. ये जो साइकिल किक है और बहुत सारी जो चीजें एक्सपेरिमेंट हो रही हैं इंटरनेशनल फुटबॉल में, उनके ये सूत्रधार रहे हैं. मतलब ही क्रिएटेड द थिंग्स, एंड उनका जो जर्सी नंबर भी वो बॉल बना दिया है, और वो 10 नंबर जो इनका फेवरेट नंबर वो भी लिख दिया है इसमें. सर सेकंड सिग्नेचर में वो जो अंडर प्रेशर बन रहा है वो बहुत ही लाइट है ना, कहीं कहीं हाँ, पर वो बिकॉज ऑफ ड्रग जो हेल्थ है बहुत ड्रग एडिक्ट हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं इसमें, पेनफ्लिक भी हुए हैं. तो ये गुस्सा करके गालियां भी देने हैं, तो इसमें पेनफ्लिक भी है, इरेटिक लाइंस एंड सर्कल्स, ऑल क्यूमुलेटिव शोइंग द ड्रग effect along with mental health issues. If you see the सर उनका compare M the- का स्लांट जो है वो काउंट होगा क्या? हाँ काउंट होगा, वो तो काउंट होगा, बट वो नेगेटिव मतलब- विथ नेगेटिव फ्लेवर. यहाँ जो पहला वाला जो स्लांट है, दूसरा वाला स्लांट है, दोनों सेम है, बट यहाँ पे पॉजिटिविटी थी, कंटिन्यूटी है, प्रेशर है, मतलब जान है इसमें. अब यहाँ पे आप देखिए उसमें जान नहीं है, इसमें तो फ्लेवर हो रहा है, जो प्रेशर है हाँ, कंस्टेंट सर। नहीं है, ठीक है, और सर प्रेशर मेंटल प्रॉब्लम भी है ऊपर। हाँ. तो एंड दिस इज ऑल ड्यू टू ड्रग. वो ड्रग के चलते, जो नशे के चलते बंदा कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता चीजों को, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है. तो प्रेशर कम हो जाता है तो आपका जो लाइन का प्रेशर कम हो गया. यहाँ देखिए एम में ही देखिए पेन का जो सेकंड फर्स्ट स्ट्रोक के बाद जो डाउन आ रहा है बिल्कुल कम हो गया, मतलब एनर्जी है ही नहीं. देन अगेन वो वैसे भी उसका सब स्क्वीज्ड हो गए हैं, ऊपर के सब जो squeezed हो गया. सेकंड हाँ, स्क्वीज हो गया है, हाँ. पूरा चपटा हो गया है. चपटा हो गया वो वही है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई. मतलब जो मिडिल जोन का जो है, जो जिंदगी है वो बदतर हो गई, उसकी वैल्यूज खत्म हो गई बिकॉज ऑफ ड्रग एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज. इवन डियागो आल्सो आप देखें, इट इज अ वेरी जो प्रेशर वेरिएशन है, मतलब हे वायर है, मतलब 0 से लेके डबल तक प्रेशर चला गया. ई और जी में यस, मतलब 200% प्रेशर हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. सो दिस इज अगेन सेम थिंग. सर उनके दोनों डी में जो डिफरेंस है, फर्स्ट डी में डियागो में लूप बना हुआ है मदर के हाँ. साइड पे, और फादर से डिस्कनेक्टिविटी है. लेकिन हाँ, जो दोनों में. सेकंड वाला है उसमें वो मदर से कनेक्टेड है, और फादर से पहले भी नहीं. डिस्कनेक्टेड थे, अभी भी डिस्कनेक्टेड. एक्चुअली आप देखेंगे ना, तो जो एक्चुअली द स्टाइल वही है. द ओनली थिंग बिकॉज ऑफ ड्रग ही इज नॉट हैविंग गुड कंट्रोल. तो वो जो गैप हल्का सा दिख रहा है, वो गैप है नहीं एक्चुअली. यस सर. यस बहुत सर, जगह वेरी लो गैप, प्रेशर का. राइट. हाँ, वो लो प्रेशर है, वो वहाँ प्रेशर आया नहीं इसलिए दिख नहीं रहा है, जबकि लिखा Correct. वैसे ही होगा. ठीक है ना. तो सर उस लूप का क्या मतलब होगा मदर साइड में? जो नीचे मदर साइड में वही है कि जो ही इज एक्चुअली मदर साइड, तो यहाँ पे जब हो गया उम्र ज्यादा होगी तो मदर का तो नहीं रहा, वो उनकी वाइफ का रिफ्लेक्ट कर रहा है. उनके जो सेक्सुअल रिलेशंस वगैरह है उसमें जो हुक आ गए, तो अगेन टेंशन आ गया. यहाँ पे डी में हुक नहीं है, यहाँ पे हुक सर भी ये जो form जी हो गया. है जो इन्होंने बनाया है, इस टाइप की जी का हाँ. क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये जी नॉर्मल जी से बेसिकली अलग है, मतलब जैसे बनाते हैं. नहीं, वही जी वही है, बिकॉज उनका जो पेन जो स्पीड एंड फ्लो है ना, वो चेंज हो गया है, इसलिए वो ब्लर हो गया, और कुछ नहीं. बिकॉज ऑफ ड्रग उनकी जो एनर्जी है, जो ड्राइव है, वो कम हो रही है. तो कभी वो चल पेन पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं. इट इज दैट, नथिंग मोर देन. कर तो वही रहे हैं, जिस जैसा जी लिख रहा है, पैसा लिख तो वहीं से ऐसे ही रहा है, बट बॉडी एंड बाकी चीजें सपोर्ट नहीं कर रही हैं. ठीक करेक्ट. है, फ्लो सपोर्ट नहीं कर रहा, फॉर्म तो वही कर रहा है, दिमाग में जी तो वैसे ही आ रहा है, बट लिख नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर इन्फ्लुएंस, ड्रग इन्फ्लुएंस, हेल्थ सर ये इन्फ्लुएंस, जो डी मेंटल का जो हेल्थ. लूप है ना, डी का जो लूप बना है अपर साइड में, मदर साइड में, वो तो जैसे बीहाइव जैसा दिख रहा है, उसका कोई मीनिंग है? हाँ,
उसका वही मीनिंग है कि बेसिकली मदर फादर जो थे इनके, जो बहुत गरीब फैमिली के थे, दोनों में कनेक्शन बहुत बढ़िया था इन लोग में, और ट्रायंगुलर बन रहा था, आप देखिए तो कंस्ट्रक्टिव जी थे। तो वो चीज नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, बट डेफिनेटली दे आर और वेरी क्लोज निट फैमिली। अब आप इनके जो हिस्ट्री में आप जाके देखेंगे तो ये सब चीजें पता लग जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ ओके सर, थैंक यू। सर डिस्टर्ब है। हाँ हाँ बोलिए। नहीं सर बोलिए। कुछ नहीं, मुझे लगा रिकॉर्डिंग शायद ऑफ हो गई है तो याद दिला रही हाँ, थी, बट ऑन। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। इनको ये जो डियागो मैराडोना का है, आप देखिए मेंटल हेल्थ सर्जरी, यहाँ पे देखिए ब्रेन सर्जरी ट्रीट सबड्यूरल हेमाटोमा। मतलब हेमाटोमा बेसिकली आपका जो ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप जो बोल रहे हैं जी फॉर्मेशन एंड ऑल दोस थिंग, इट इज ऑल रिफ्लेक्टेड हियर। अब ये है कि अब इन सब चीज में ये एक खिड़की है, छोटी सी खिड़की है, बट इसके अंदर आपको घुस के इसको दरवाजा बना के अंदर जाके आपको बहुत सारे काम करने हैं, देखना है, बहुत सारे डाटा इकट्ठा करना है। इट इज अगेन, मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन इंस्पायर एंड डू फर्दर। जो जिसका फील्ड है उसमें जाके वो उसको, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, वन हैज टू फर्दर grow these things to a final conclusion and connect the dots to make a clear picture further. सर आपने बहुत बैलेंस्ड दिमाग रखा होगा ये सब करते हुए। नहीं, बैलेंस करके ही देखना है, क्योंकि आपको पर्सनालिटी जज नहीं करना है, बिकॉज आप देखिए ह्यूमन बीइंग जो भगवान ने जो आप देख रहे हैं ग्राफोलॉजी में, फीचर्स तो सबके सेम है ना। ये वैसे ही है, जैसे आपके किचन में नमक मिर्ची कितने हैं, मसाले कितने हैं, 4-5 मसाले हैं, और आलू प्याज और सब्जी सेम, बेसिक इंग्रेडिएंट सेम है। सभी सब्जियों के, सभी कॉन्टिनेंटल डिशेस जो हजारों बनती हैं, उनकी बेसिक चीजें तो वही है, बट आप कौन सी चीज को डाल रहे हो, कितना डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सर रहे हो, ऐसा उससे होता है टेस्ट कि अगर चेंज हो जाता है। अगर एक सब्जी बनाई है घर में, 5 लोगों को पसंद आती है, एक को नहीं, तो उसका क्या रीजन? तो उसको आप दूसरा आप उस सब्जी को दूसरे स्टाइल से बनाइए, देखिए उसको पसंद आ जाएगी। थैंक यू। सब्जी तो वही है, गुल खाते हैं, Right. गुलगुले से परहेज करते हैं, वो होता ही है, कई लोग को होता है। आप उसको दूसरे स्टाइल से बना दीजिए। अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे घर में एक बंदे को बटा पसंद नहीं है, बट बटा फ्राई जब करके देते हैं वो पसंद हो जाता है उसको, तो बटा फ्राई दे दो उसको। नेक्स्ट वन। चलिए, ये देने here D has a gap at lower, smooth curvy base of W, A top open। अब देखिए जो गैप है, डी का जो गैप है वो फादर के साथ डिस्टेंस है, डिस्टेंस बता रहा, फादर रिलेशनशिप। एंड अपर जोन जो डब्ल्यू का जो आप देखें कर्व्स है, तो सो कॉर्डियल रिलेशन विद वाइफ, एंड ए टॉप ओपन है तो टॉकेटिव है, इंटेलिजेंट, वेरी हैप्पी एंड नीडी पर्सन। यहाँ भी जो बेसलाइन वेरिएशन है वो इरेटिक नहीं है, तो इट इज नॉट सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज। थोड़ा बहुत परेशानी होगी बट नॉट ए मेंटल हेल्थ इश्यूज। मल्टी लेवल भी तो है। मल्टी लेवल तो वही फैमिली का सपोर्ट है। दिस फेलो हैज अ वेरी गुड रिलेशन विद हिज वाइफ, तो फैमिली का सपोर्ट है। ओके ओके, सेम चीज। हाँ, आप डिस्कस करेंगे ना तो अपने आप पता लग जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ खाली वर्ड अलग है, बेसिक जो चीजें हैं वो सेम है। हमें वाइफ से बोल रहे हैं, आप फैमिली से बोल रहे हैं, वो दोनों चीजें बेसिकली तरीका अलग है, वर्ड्स अलग हैं, बेसिक ट्रेड्स वही, टेक्निकल चीजें सब सेम ही है। वॉशिंगटन का सर एस एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो दैट्स व्हाई ही और एल एक्चुअली, हाँ फैमिली के लिए जो एच है, डब्ल्यू के बाद एस के बाद जो एच आ गया है,
वो ब्रेक अवे हो रहा है, मतलब दिस फेलो वांट्स लॉट ऑफ थिंग्स फॉर फैमिली, वो इम्पेशेंट हो रहा है, फैमिली के बहुत कुछ करना चाह रहा है, हेल्पिंग। ओह, ओके और सर एल में इतना बड़ा लूप है, इतना वाइड लूप इन एल, डेंजल के हाँ, एल में। अगेन वो फैमिली के अपने लिए ही करना चाह रहा है, वो अपने लिए ही करना चाह रहा है, एंड उसके साथ वो आगे बढ़ना भी चाह रहा है, इंटेलिजेंट हो गया। वो लूप कवर स्टॉक बनाने के बाद फिर अगेन वो फॉरवर्ड निकल गया उससे। तो सर ये जो एम का जो लूप है और जो फेलिक्स स्ट्रक्चर्स वाले लूप होते हैं, तो सर इनमें क्या डिफरेंस है? हाँ बहुत सही है। जो फेलिक स्ट्रक्चर है वो जो भी लेटर है उसको फॉर्मेशन में उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तो वो कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव मीनिंग है, वो एनर्जी है, वेरी हाई बंडल ऑफ एनर्जी, वो कंस्ट्रक्टिव में वो पॉजिटिव क्रिएटिव चैनलाइजिंग हो गया। बट वो अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर रहा है तब वो वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, देन ही इज ड्रिवन, लिबिडो ड्रिवन हो जाएगा एंड डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जैसे उसमें एक डेनियल का बताया था ना मैंने, जो वो लेडी के हाथ और मुंह सब काट लिए थे, कर लिए थे, ये यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ। ये देखिए नेगेटिव, ये देखिए ये डीन फील्डर, दिस फेलो है। इसमें ये देखिए, इसमें डी नहीं दिख रहा है, ओ दिख रहा है, यहाँ भी डी नहीं दिख रहा है, ये नेगेटिव में चला गया। तो दिस फेलो हैज इन सेक्सुअल रिलेशन, दिस फेलो अब किसी महिला के उसके भौं ही के बाल खा गया था, ये नाक खा गई थी, हाँ नाक खा गया था, होंठ कट गए थे इसके, रेड मार्क्स ऑन हिज नेक, उसमें भी गर्दन को भी चबा डाला था इसने। तो दिस इज एक्सट्रीम बेसिकली, ठीक है। तो विकृति के लिए क्या वर्ड होगा? विकृति के लिए यही है, कोई नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यू हैव टू सी दैट। नेगेटिव होगा तो उसमें विकृति हो जाएगी, और पॉजिटिव हो गया तो सुकृति हो जाएगी, आकृति हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए डी जो है लोअर केस में आ गया यहाँ पे, डेनियल का। कभी कोई बंदा लोअर केस में लिखता है तो उसका एक लोकल विजन होता है, ग्लोबल विजन नहीं होता, मॉडेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉडेस्ट, केयरिंग एंड परपेचुअल एनर्जी, बिकॉज परपेचुअल एनर्जी इसलिए आ रही क्योंकि इसमें जो पैराबोलिक हाफ स्ट्रोक्स आ रहे हैं ये उसके टी और उसको जो रिदम है उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो रही है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कमिटेड, पावरफुल येट नॉट एग्रेसिव, बिकॉज उसमें एंगुलर स्ट्रोक जो है बहुत तीखे, बॉटम में खासकर तीखे नहीं है। प्रोएक्टिव, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग, क्योंकि जो पेन स्ट्रोक्स है वो कहीं भी लिफ्ट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूस जा रहे हैं, तो वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेवल। दैट्स व्हाई दिस फेलो इज अ वेरी गुड फेमस टेनिस प्लेयर। अपर जोन का एंड स्ट्रोक क्या कहेगा सर? यस, अपर जोन का एंड स्ट्रोक यही कहेगा कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनको वो दे थिंक लॉट ऑफ थिंग फॉर देयर ओन फील्ड, तो उसमें क्या चीजें नई सोच डाल सकते हैं, उसके हिसाब से कैसे काम कर रहा है, तो नई सोच जो है, जो एनर्जी है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके सर, थैंक यू सर। एम का एक माउंटेन थोड़ा शार्प है और दूसरा थोड़ा सा स्मूथ है। हाँ, तो पहला जो स्ट्रोक है वो हार्श है, सेकंड स्मूथ हो जाएगा, मतलब ही वांट्स टू देव है बेसिकली फैमिली नेम है, तो फैमिली नेम जो है, जो फैमिली रिलेटेड चीज में ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वो उसमें रिएक्ट बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है। डेनियल फर्स्ट नेम है तो उसमें वो सॉफ्ट रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द फैमिली ही बिकम्स वेरी एग्रेसिव, वेरी फास्ट, टचिंग, सेंसिटिव। सर अभी जो ये जो मुकाबला हुआ इसमें ये हार गए अपोजिट नाडाल, तो यहाँ इनके सिग्नेचर में ऐसा कुछ दिखता है कि he gives tough fight but he gets defeated or he just cannot succeed over his rival? नहीं, देखिए जो टॉप 10 खिलाड़ी होते हैं ना वो सब एक ही लेवल के होते हैं।
किसी को उस समय पता लगा बुखार आ गया या किसी उसी का ध्यान इधर से उधर चला गया, बस उसमें ही हाँ। गेम डिसाइड हो जाता है। 1 सेकंड में, या तो हाँ, जो क्लास में भी जो टॉप 3 बच्चे आते हैं उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। या खाली चीज हो सकता है उस समय उसको वरी हो गई या टाइम हो गया, घबरा गया या कुछ चीज उस समय याद नहीं आई, ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, कैपेबिलिटी है, बट हो सकता है वट एवर रीजन वो कंफ्यूज हो गया या किसी को देख लिया, किसी कुछ इम्पैक्ट हो गया कुछ चीजों का या समय का हो गया, वट एवर। तो जो टॉप 10 या टॉप 5 रहते हैं उनमें आप कोई ये प्रिडिक्ट करे कि ये जीतेगा, ये नहीं। आप बता सकते हैं ये जीतेगा, तो उसके जीतने के जो पीछे जो कारण होंगे वो ये कारण होंगे। करेक्ट। अब कोई एग्रेसिव बंदा भी कई बार डल हो जाता है ना, और कई बार कई डल बंदा भी बिकॉज ऑफ फियर वो एग्रेसिव हो जा रहा है। तो दिस इज समथिंग हम 80%, इसीलिए मैं बताएं ग्राफोलॉजी में मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को 100% करने की कोशिश मत करिए। आप अगर 100% करेंगे तो आप खुद मेंटल वाले हो जाएंगे, क्योंकि जो 15% 10% है वो नेचर के हाथ में, वो डिसाइड करती है, हम डिसाइड नहीं करते। तो अगर हम डिसाइड करने लगे तो फिर हम भगवान हो गए। कोई हमें इतनी औकात नहीं, हमारे किसी में इतनी औकात नहीं कि जो इसको इस प्रकार से कर सके। इसीलिए यहाँ पे ज्योतिष से हम अलग हो जाते हैं। यहाँ हम बताते हैं कि आप अपने स्किल को, टैलेंट को, ट्रेड्स को शार्पन रखिए, कंट्रोल में रखिए, दैट्स ऑल। आपका सर ये एम के बीच में एक फेलिक स्ट्रोक आ रहा है, उसका क्या रीडिंग? डी और एम के बीच में एक स्ट्रोक है। एक्चुअली वो डैनियल का जो ए है वो ए को फॉर्म कर रहा है, वो हाँ डाइल्यूटेड है बेसिकली डी का। अच्छा। वो जो ए जो क्लासिकल स्टाइल में कर लिखते हैं जो ए, वो इस टाइप से ये ए है, वो पहले लिखते होंगे, वो ब्लर हो गया बेसिकली। ओके सर, तो इसमें नेल जो है वो मिसिंग है ना? नहीं, नेल डैनियल का, हाँ डी और ए है बस, उसके बाद फिर एम चालू हो गया। सो ही फैमिली इज फर्स्ट, so he gives more importance and to his family than himself. Strong family bonding लिखा हुआ है इसमें already. डेविड डी आइजनहोवर ये देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं तो यूएस के, 2 सिग्नेचर्स हैं इनके। देखिए पहले वाला जो है इसमें अगेन जो प्रेशर है, प्रेशर वेरी हो रहा है बट नॉट स्मूथ वन। बट जो सेकंड वाला है उसमें देखिए वो जवानी का है और थोड़ा सा प्रेशर जो है बहुत स्मूथ है, रिदम नेचर जो है फ्लरिश हो रहा है, एक पॉजिटिव साइड में एक जा रहा है। तो these are the 2 signature of same person. So letter D with the lower knot simplified, traditionally controlled microzone, extended and stroke, no loop in the H. It will translate into the troubled childhood, क्योंकि जो नीचे वाला जो D है 2 सेम उसमें नॉट बन रहा है, वो troubled childhood बता रहा है। And relations with father, and because जो ट्रेडिशनल E जो लिख रहे हैं वो आइजनहोवर का ई जो स्टेट बन गया है वो ट्रेडिशनल है, तो वो ट्रेडिशनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यूज को बताता है। एंड कल्चरल, अभी ई जो लेटर ई का जो मैं बना रहा हूँ उसमें यही चीज हम आएगा, इसमें कल्चरल इंटरेस्ट है, वो सब चीजें आती हैं इसमें। तो एंड जो मिडिल जोन आप देखिए जो सेकंड वाले में है, बिकॉज ऑफ स्पीड वो लेजिबल नहीं है, बट उसमें रिदम एंड स्पीड बहुत फास्ट है, जबकि फर्स्ट वाले में बिकॉज ऑफ प्रेशर कम हो गया तो लेजिबिलिटी बढ़ गई, बट वो उसमें ब्लर्स आ गए ज्यादा आगे बिकॉज स्पीड कम हो गया तो वो जर्क्स ज्यादा आ रहे हैं। दिस शोज द सम हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ एज। और एच में कोई भी वो लूप नहीं है, तो देयर इज नो ईगो। दिस फेलो इज अ वेरी फेमस president and more popular president of USA, and he makes a lot of things. जो जैसे अभी हमारे यहाँ मोदी जी रोड बनाओ बोल रहे हैं, ये इनने अमेरिका में उस समय रोड बनाओ चालू किया था।
रोड बनाए और बाकी कनेक्शन किया, एंड दिस इज द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका की वो सबको बना बांट के मतलब इकट्ठा करके रख पाए और सर उसने बहुत सेकंड बड़ी हेल्प सिग्नेचर करी। डाउनवर्ड हो रही है एंड में सर। हाँ डाउनवर्ड हो रही है बिकॉज ऑफ ये फैमिली का, ये ही इज वरीड अबाउट, बिकॉज ये मिलिट्री के बंदे हैं बेसिकली देखा जाए तो ये, अच्छा और इन्हें रोड की मेहनत का समझी और उसके चलते उसके जो इल इफेक्ट है वो सब देखे हैं इन्हें, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो उनको एक सिंकिंग फीलिंग है कि हमारी जो मेरी फैमिली हमारा जो नेशन है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, तो उसके लिए उन्होंने बहुत जोर लगाया। तो वो जो फीलिंग है बैक ऑफ द माइंड वो दिख रही है यहाँ पे। जबकि जब वो जो फीलिंग है, जो डाउन वाली फीलिंग है, हालांकि ये जो पहला वाला सिग्नेचर है इंफीरियर है, बट यहाँ पे वो डाउन फीलिंग खत्म होगी क्योंकि वहां पे वो रिटायर हो गए, उसके बाद ये सोचना छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि उनने करके वो काम करके आ गए, तो वो फीलिंग खत्म हो गई। हालांकि वो इंफीरियर सिग्नेचर है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसमें डाउन हिल नहीं है उसमें क्योंकि वो अपना काम करके आ चुके हैं उसमें, तो वो फीलिंग खत्म हो गई अपने आप, तो वो डाउन हिल भी खत्म हो गया। सर जो जैसे लाइट इनका सिग्नेचर है, middle- कंटिन्यू प्लीज। हाँ हाँ, सर जैसे इनका जो ये मिडिल जोन है दोनों ही सिग्नेचर में इतना प्रोमिनेंट हाँ नहीं है, तो सर इसका नहीं मतलब यही होगा कि जैसे अगर ये मिलिट्री में थे उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट बन गए थे, तो मतलब ये पर्सनल लाइफ से इतने एंगेज नहीं थे इस वजह से। नहीं 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 पर्सनल लाइफ देखो, मिडिल जोन जो माइक्रो हो रहा है वो इंटेलिजेंस का शो करता है, मतलब ये मिडिल जोन में स्क्रिबल नहीं हो रहा है, ये देखिए इसमें इट इज स्क्रिबल नॉट इलेजिबल, इट इज स्क्रिबल्ड मिडिल जोन एंड स्क्वीज्ड मिडिल जोन बोल सकते हैं आप। इस इनफैक्ट आप जो पहला वाला सिग्नेचर है जो नीला वाला रंग का दिख रहा है उसमें तो यू आर एबल टू find the you are able to read the DWIGHT क्लियर पता लग रहा है, ठीक है। जैसे आप देखिए इनफैक्ट अब टी देखिए जो डॉइट का टी है डाउनवर्ड जा रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन, उनकी पर्सनल हेल्थ है इसलिए टी में डाउन जा रहा है, ठीक है ना। तो एंड वो अलग हो रहे हैं वो चीजें, वो उनके कनेक्शंस भी गड़बड़ हो रहे हैं। देखिए डी के बाद डब्ल्यू का गैप आ गया, उसके बाद फिर गैप आ गया, तो दिस फेलो इज बिकम लोनर क्योंकि ये बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स वो कट रहे हैं अपने सामाजिक उससे पहचान से, उनकी जो ब्रांडिंग है वो कमजोर हो रही है। जबकि पहले सेकंड वाले में देखिए बिल्कुल कंटिन्यूस फ्लो है, पूरा कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड, बिकॉज ही इज इन पावर एंड ही इज कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग द थिंग्स इन लाइफ, तो वो चीज कंटिन्यूशन दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यूशन नहीं दिख रहा है इसलिए ब्रेक्स भी आ गया। तो आप जब भी आप ये सिग्नेचर, हाँ बोलिए। सेकंड में जो डी है वो ट्रायंगुलर नहीं बन रहा है? हाँ हाँ बन रहा है, हाँ तो ट्रायंगल और स्क्वायर जो है कंस्ट्रक्टिव कहलाता है। ओके कंस्ट्रक्टिव थे, उन्होंने बनाया पूरे अमेरिका में, पूरा रूट नेटवर्क बनाया उन्होंने। ओके हाँ ये देखिए अभी आप यहाँ पे आप जाके देखिए, मैंने रेड नहीं किया इसमें, आपको पता लगेगा यहाँ पे। एक मिनट ये बताता हूँ। वन मिनट में देख के बताता हूँ। देखिए सिविल राइट मूवमेंट, मेमोरियल फेयरवेल एड्रेस, वाशिंगटन मिलिट्री, he has made lot of, मैंने मेरी गलती है मैंने बता नहीं पाया इसमें, नहीं कर पाया। No इसमें problem, वही sir. है इन, हाँ इनने बहुत, इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि ये दिस फेलो हैज Okay. डन लॉट ऑफ infrastructure work for the America to build a strong footing for the America for the future. Now this is Demi Lovato. Just see इसमें can you see this the rhythm here? जैसे राग में ऊपर नीचे होते हैं, can you see the rhythm here?
जस्ट आप अपनी Yes. आंख को लेफ्ट से राइट देखें, आपको पता लगेगा इसमें रिदम है, एक फ्लो जा रहा है, ऊपर नीचे Yes. रिदम जा रहा है, एक फ्लो जा रहा है. सो दिस फेलो इज अ वेरी फेमस सिंगर. एंड बट इसमें अगेन जो बेस लाइन है वो वेरी हो गई है. एंड जो अब जो हार्ट शेप बन रहा है ना, हार्ट शेप विथ लॉट ऑफ मिडिल से बन के उसमें 2 या 3 आपके वो बन रहे हैं, एंगुलर पॉइंट बन रहे हैं. So this fellow has a lot of issues in the love relations, and here P में भी यहाँ भी not बन रहा है. So this is all the negative traits for her Demi Lovato. So this has a even D में जो not यहाँ बना है, तो this fellow has a lot of no relationship problem with childhood. इनके parents जो हैं second parents divorced हो गए हैं बचपन में ही, और Lovato has no interest in forging relationship with Patrick as their parents divorced. So childhood issues हैं. सर Abusive स्टमक father इश्यूज relation. किधर से दिख रहे हैं? अभी आप बताइए. लेटर E and O and अच्छा, A. यस यस, या ठीक है. हाँ, ये मिडिल जोन के बताते हैं स्टमक रिलेटेड इश्यूज. लेविश लिविंग, बिकॉज जो फ्लरिशमेंट ज्यादा है, तो फ्लरिशमेंट इज नथिंग बट लेविशनेस. ट्रबल पास्ट एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज इसीलिए हैं क्योंकि आपके जो लेटर्स हैं उसका जो सेम साइज नहीं हो रहा है, एंड उसमें नॉट्स बन रहे हैं. ठीक है. एंड जो हार्ट है उसमें भी एंगल्स बन रहे हैं. तो दीज आर ऑल द बेसिकली mental health issue. And even if you see here, lot of, especially at the end of here, there is a lot of blur. And O again, आपने जैसे बोला है हेल्थ इश्यूज, ये देखिए O, लास्ट O देखिए, स्टमक रिलेटेड इश्यूज. हाँ बिल्कुल, जो लेफ्ट साइड में नॉट बन रहा है, जो नॉच बन रहा है O में लेफ्ट हैंड साइड में. दिस इज अगेन सर इतना बड़ा एल जो है उसका क्या रीडिंग होगा? एल जो लूप इन लूप जैसा है, आई मीन नो. ये लेविश. हाँ, ये लेविश ओके. लेविश लाइफ जो है. सर ये जो डी का लूप है जो ऊपर से आके एकदम नीचे को टच कर रहा है. हाँ हाँ, वो क्रॉस कर रहा है बेसिकली. अगेन वो जो है चाइल्डहुड इश्यूज जो है उसको अभी भी जी रहे हैं, उसी को लेके आगे बढ़ेंगे. वो क्रॉस करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, उसको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं. If you see this fellow has a abusive father relation in the childhood, and if you see this history, you will have good exposure and more clarity on this issue. जो बहुत रेड किया हुआ है मैंने, ये सब वही चीजें हैं जो नेगेटिव चीजें हैं उसको मैंने रेड कर देता हूँ यहाँ पे. Brian Sanders, this fellow is a sports person. अभी आप देखिए इसमें जो सेल्फ है, देखिए स्टेम है, लीनियर स्ट्रोक है, वो बहुत ही मिनिमम है. जबकि जो डी का जो कर्वी स्ट्रोक है वो पैराबोलिक भी बन रहा है एंड फ्लरिश हो रहा है ओवर दी, मतलब बिगर देन 7 times 8 times. तो फादर का है नहीं, तो मदर जो कर्वी है वो मदर कहलाता है. मदर पैटर्नेज एंड रिलेशनशिप गैप विद फादर, मनी ड्रिवन, स्ट्रेंथफुल फैमिली रिलेशन, बिकॉज फैमिली रिलेशंस जो है उसमें क्रॉस हो रहा है. जो सेकंड नेम है उसमें सैंडर्स में 2 क्रॉस हो रहे हैं, डॉलर साइन बना के उसको क्रॉस कर रहे हैं. तो मनी ड्रिवन, मनी रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे हैं फैमिली के. स्ट्रेंथफुल फैमिली रिलेशंस, क्विक हाई एनर्जी एंड बट टैलेंटेड, बिकॉज वो बहुत ज्यादा डी जो है डी फॉर्म कर रहा है इंस्पाइट ऑफ पैराबोलिक, वो डी दे रहा है, टोटल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ. दवे बतुस्ता. Here if you see the D, हर जो स्टेम है नीचे क्रॉस हुआ अगेन. सो एंड लेफ्ट में जा रहा है. जब भी कोई भी स्ट्रोक्स लेफ्ट में जा रहे हैं तो वो इनहेरिटेड
हो जाते हैं। तो इनहेरिटेड स्किल्स एंड कर्व स्ट्रोक्स प्रोमिनेंट है, तो मदर शेल्टर है, मदर का सपोर्ट है उसमें। बट अगेन जो डाउन सर ये किस फील्ड से हैं? किस फील्ड से हैं ये? हाँ ये है बट ये वाशिंगटन, अमेरिकन एक्टर लिखा हुआ है ये एक्टर, नीचे हाँ फर्स्ट एक्टर, लाइन। हाँ वही है, एक्टर है, राइट, एक्टर हैं ये अमेरिकन के। एक्चुअली मैक्सिमम जो है ये, बट दिस फेलो इज अ प्रोफेशनल, रेसलर भी थे ये WWE में। ये That is- WWE पे हैं, ये प्रोफेशनल रेसलर हैं। एंड इनकी जो लेजिबिलिटी है बहुत बढ़िया है। जो बट पहला लेटर जो फर्स्ट नेम में देखिए उसमें मिडिल जोन छोटा है, जबकि जो सेकंड नेम है उसमें बड़ा हुआ है। दिस इज अगेन मेल एडजस्टमेंट personality, because this fellow looks more practical support from family and all, and for him he has a lot of intelligence and creative energy. So some male adjustment, not synergy with the family, but lot of support with the family. And the T का जो drive है बहुत बड़ा है। तो जो फैमिली रिलेटेड जो ड्राइव है, लीडरशिप है, वो उनको सपोर्ट कर रही है। बट यहाँ पे जो नीचे डी में जो क्रॉस हुआ है, तो फादर के साथ जो रिलेशन है क्रॉसिंग हो रहा है उसमें। सर बॉटिस्टा में ए अजीब सा लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, काफी बड़ा सा। यस, दैट्स व्हाट। जब भी लेटर साइज ओवर ग्रो कर गया, इट मींस जो, और ए जो लेटर है, जो स्मॉल लेटर्स है वो बड़ा साइज में जा रहा है, कैपिटल से भी बड़ा जा रहा है। इट मींस ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल द life at that moment of time. Struggle with very high degree of trouble, basically. Unable to control beyond Okay, his sir. reach. This is what the painful love relations. Just see here, and especially with the family. Maybe relations with love relations means always doesn't mean with wife, with other persons also. As a father, mother, or sister, whatever. Here, David Foster is a musician basically. So this is इसमें linear stroke है ही नहीं, curve है. It means creativity है, caring and sharing. So he is a very good musician. And D letters, if you see, is a plunge into lower zone में नीचे चला गया. जो कैपिटल लेटर है नॉर्मली मिडिल जोन एंड अपर जोन में रहता है, लोअर जोन में नहीं होता, ये लोअर जोन में ही चलेगा. तो इट मींस दिस फेलो हैज ए maybe making music with a lot of folk music and all the country music like that. So one has to go and do further research on that. That way. And fluidic F with some pointed. So it means this fellow has a enjoying his things, but he do the very well research and take pain to do the things. डेविड का डी और नीचे फोस्टर का एफ दोनों एंटेंगल हो रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? टच कर रहे हैं। डेविड का डी नहीं नीचे हो रहा है ना, तो दैट्स राइट। मैंने बोला ये मतलब जैसे मैंने बताया ना, ये फोक म्यूजिक में जा रहे होंगे, मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ चीज है ना। जैसे म्यूजिक करेंगे तो ये वहाँ के कंट्री म्यूजिक या फोक म्यूजिक में करेंगे। और ये एंजॉयमेंट है ना, वो एंजॉयमेंट जो इनने लिया, एफ जो फ्लूडिक एफ बन रहा है, जो एंजॉयमेंट है ना, इट इज अ रिजल्ट ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रेशर एंड पेन। तो वो यहाँ पे पेन जो स्ट्रोक्स में आ रहा है। सर ये जो इसका एफ का जो लूप है, ये कुछ ट्रायंगुलर जैसा है, मतलब एक सडन जर्क है इसमें, मतलब एकदम फ्लो नहीं कर रहा है एकदम। एस का जो है, एस जो है बेसिकली आप देखिए, इसका आपका जो वर्टिब्रा को बताता है, तो इनको कुछ रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होगी, वो आप देखेंगे तो पता लगेगा उस बात में। सर एफ में भी नीचे पॉइंट है, जो फोस्टर का एफ है उसमें नीचे वो काफी पॉइंटेड हो गया है। पोस्टर एस तो है ही नहीं ना, एफ ओ एस एस है ही नहीं।
एफ की बात कर रही हूँ, एफ हाँ, फॉर F। फोस्टर। अच्छा, वो तो मैंने बताया ना अभी, जो एफ है फ्लूडिक है। फ्लूडिक लेकिन मीन्स नीचे से एंजॉयमेंट। पॉइंटेड भी है। मैंने अभी बताया, आपने सुना नहीं ठीक से। एफ जो है फ्लूडिक है, मतलब जो एफ जो होता है, आप बंदा उसको अपने जॉब को एंजॉय करता है। तो ये एंजॉय तो कर रहे हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ पेन। तो इनने जो म्यूजिक लिया होगा, जो बनाया होगा, उसमें आपको तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बट दिस फेलो हैज पुट लॉट ऑफ पेन टू डू दैट, ओके ओके। pass through the a lot of pain to create those things. You enjoy, he also enjoy, but it at the cost of lot of pain. Okay. And this is how it is. If you go to this, David Foster is born from Columbia Foundation. Now you come to Deepika Padukone. तो अभी हमारे बरवे जी थे, उनने बताया था भाई इंडियन बंदों का भी क्या करो, तो अभी मैंने अभी से अब जो है इंडियन बंदों का भी ढूंढता हूँ, उनका भी इंक्लूड करना चालू कर दिया। अभी लेटर ए में भी बहुत मिलेगा, डी में भी अभी बहुत सारे आ जाएंगे आपको। सो इट इज वेरी इजी बिकॉज वी कैन रिलेट द थिंग्स वेरी prominently. Here D again you see lower group में childhood troubles हैं इनके, बट ये दीपिका पादुकोण का जो लेजिबिलिटी एंड प्रेशर वेरिएशन आप देखिए, डी में जो है ब्रेक्स भी हो रहा है यहाँ पे ऊपर लूप में, उसके बाद सडनली प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं ये, इनको बहुत सारे इश्यूज हैं। इफ यू सी दैट एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ एंड मूड स्विंग्स आर देयर। सर पी का जो अपर पोर्शन है वो हाइपरबोलिक है, तो फिर हाइपरबोलिक भी बन रहा है। और ये जो है, ये जो बैडमिंटन खिलाड़ी, तो ये रैकेट का जैसे भी आप देखिए, रैकेट का जो शेप है ना, वो आ रहा है। इट इज नॉट पैराबोलिक एंड सर्कुलर, दोनों का मिक्स है। प्योर पैराबोलिक भी नहीं है, प्योर सर्कुलर भी नहीं है। राइट समथिंग लाइक बैडमिंटन का जो है उस टाइप से बना सर पहले वाला जो सिग्नेचर है उसमें बेस लाइन ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में तो बिगड़ गई है। हाँ, दूसरा वाला ये बचपन का है, ठीक है। ये मैच्योरिटी है। तो मिडिल जोन देखिए बहुत एक जैसे हैं, एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रगल, और उन्हें जो अपना एक मुकाम हासिल किया था, तो वो सब लेजिबिलिटी आ गई, सभी कुछ आ गया, बेसलाइन अच्छी हो गई। बट उसके पहले बहुत जो स्ट्रगल पीरियड था, तो वो स्ट्रगल था, वो इसमें बता रहा है कि बेसलाइन वैसी नहीं है, लेटर साइज कम ज्यादा हो रहे हैं, बट रिदम है, एनर्जी है, फ्लो है, वो चीजें हैं। तो ये दीपिका का आप देखिए, और उसमें फैमिली का सपोर्ट भी है, तो इसलिए जो पादुकोण है नीचे में है यहाँ पे। उसके बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गई, अभी शादी भी हो गई, सब हो गई, तो वो जो चीज है वो फेस निकल गया, अभी इंडिपेंडेंट है, इसलिए एक लाइन में सिग्नेचर्स भी। But sir, this signature was much before her marriage, huh? राइट, चाइल्डहुड का। No, the first one. नहीं, फर्स्ट वन अभी का है, फर्स्ट वन अभी का है, ये बचपन का है, जब वो खेल रहे हैं। चाइल्डहुड मैच्योरिटी लेवल देखिए, जो मिडिल जोन है बड़े हैं, तो वो मिडिल जोन जब स्क्वीज होते हैं तो मैच्योरिटी लेवल ज्यादा होता है। तो मैच्योरिटी लेवल अभी उम्र के साथ ज्यादा हुआ है उनका, इनके साथ जितनी जी प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे स्ट्रगल किया, तो उससे मैच्योरिटी आई है। यहाँ पे वो मैच्योरिटी स्केल कम है, रिदम है, बचपना है, मेहनत है, एंड क्लोजनेस है, एंड फैमिली का सपोर्ट है। जो सेकंड वाला है वो बचपन का पुराना है, उसमें मैच्योरिटी लेवल जो है कम है, कंपेरेटिवली बहुत कम है, इसमें मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा है। अभी आप देखिए, जो मैच्योरिटी लेवल कम होने से ये जो डी का जो स्ट्रोक है नीचे जो आ रहा बहुत पॉइंटेड है, तो वो बहुत इफेक्ट करता है। जब ये मैच्योर हो गए तो वो जो पॉइंटेडनेस कम हो गई यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में, बिकॉज शी अंडरस्टैंड कि ये जिंदगी में ये सब चीजें होती हैं, उससे इफेक्ट नहीं होना है, तो वो चीजें ट्रंकेटेड हो गई। यहाँ दूसरे वाले में देखिए बहुत शार्प है। चलिए
अगेन सर 3 डी and में जो स्ट्रोक है, पॉइंटेड स्ट्रोक, हाँ इनिशियल ये आपने अभी जो कहा, इनिशियल, हाँ वो रिट्रेसिंग है ना वहाँ पर, पहले हाँ इसमें रिट्रेसिंग, रिट्रेसिंग नहीं है। हाँ तो रिट्रेसिंग बचपन में क्या है, वो इनके फादर इनकी प्रैक्टिस कराते थे। तो रिट्रेसिंग वही है कि सेम चीज को रिपीट करना, मतलब जो स्ट्रोक कैसे मारना है, कैसे खेलना है, वो सब चीज फैमिली के यस साथ। यस यस ठीक है, अब आप वो सब चीजें रिलेट करेंगे ना, तो सभी चीज आपके जो जवाब है ना, सब आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। यस हम ठीक। हम तो उसके कुछ कुछ पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हैं, बट सभी पॉइंट कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए समय और बाकी चीजें चाहिए, फिर वो पूरा एक सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यस सर उसके फिर हम बाजू में एक नेट भी बनाई है जो बैडमिंटन फील्ड में होती है स्टेडियम में। हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल 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 सही है, वो बनाई, चिड़िया बना दी है उसमें। तो इनके प्रकाश पादुकोण ने इनको बचपन से ट्रेन किया हुआ है, तो वही जो रिट्रेसिंग है बेसिकली रिपीटिंग द सेम थिंग। और वो चीज यहाँ पे पहले वाले सिग्नेचर में आप डी और के में देखिए, वही चीज आ रही है, के रिट्रेस्ड स्टेम है, वो लूप नहीं आ रहे हैं उसमें। या सर ठीक है। ई में भी प्रॉब्लम है, जो अभी का सिग्नेचर है उसमें ई बिल्कुल सी के जैसा बना है, लूप है ही नहीं। हाँ वो एक्चुअली वही है, उसमें जो ई का जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं, लास्ट वाला ई दिख रहे हैं, पहले वाले का, पहले सिग्नेचर का लास्ट। यस सर। लेकिन पहले वाले का दीपिका में जो डबल ई है, उसमें तो वो आई जैसे लग रहे हैं, जबकि राइट। पादुकोण जो लास्ट वाला है वो क्लियर है। ठीक है, ई जो है कल्चरल कम्युनिकेशन कहला रहा है बेसिकली। तो वो जो पर्सनल में वो कोई कल्चरल वाला वैल्यू जो है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, तो वो कल्चर जो आ नहीं पा रहा है। जबकि सेकंड में पादुकोण सरनेम है जो फैमिली का है, तो इसलिए वो कल्चरल वैल्यूज रीस्टेबलिश हो रही है। ठीक है। और सर पी में भी फर्क है ना, पी में पहले इसमें लूप नहीं है, सेकंड इसमें हाँ लूप हाँ, है, सेकंड वन में लूप पॉइंट है। हाँ तो उसमें डेफिनेटली जब जो ट्रेनिंग जो फादर दे रहे हैं, फादर तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखा रहे हैं, बट उस सेम चीज को रिपीट करने को बोल रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिट्रेस भी है, बट फादर तो आपको बहुत सारे जब ट्रेनिंग देते हैं उनके, तो बहुत सारी वैरायटी सेम चीज को कैसे किस तरीके से या किस वैरायटी से करना वो भी सिखा रहे हैं। तो इसलिए वो लूप जो है डबल सेकंड वैसे दूसरे जगह से लेके जा रहा है, नॉट सेम जगह से जा रहा है। वो पादुकोण है, वो फादर का है, नॉट है। और जो पॉइंट है वो क्या स्ट्रेस दिखा रहा है? पॉइंट वो स्ट्रेस है। उस समय बहुत इनको बचपन से सुबह 4 बजे उठ के बहुत कंडीशन में रही है ये, इनका जो बचपना आप देखेंगे तो सुबह से उठ के पूरा चैलेंज, पूरा दिन का प्रोग्राम रहता रहा इनका पूरा। सर फर्स्ट नेम में दोनों ई जो है दीपिका के, दोनों ई आई जैसे बने हैं विदाउट डॉट वाले, उसका क्या रीडिंग? अभी आपने सुना नहीं मैम, मैंने यही बताया, किसी ने पूछा था तो मैं वही बता कल्चरल रहा का था। ना? हाँ वही है कल्चरल का, तो पर्सनल में वो कल्चरल चीज जो है सेकंड स्ट्रोक में जाती है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जबकि पादुकोण में वो चीज रिफ्लेक्ट आ रही है, क्योंकि फादर जो है वो ब्रिज है कल्चरल को वैल्यूज को डालने के लिए। सर इनको स्ट्रेस और स्टमक प्रॉब्लम फिर नहीं बोलेंगे अगर ई में लूप ही नहीं है बिल्कुल तो? हाँ ई में नहीं बोलेंगे, ओ एंड ए, उसको और रिपीटिशन भी देखना है उसको। ओके सर। ओके, बट यहाँ पे जब ओ का या पादुकोण का आप देखेंगे, ओ वहां पे है, हल्का सा दिख रहा है उसमें, देखिए, बट इट में बी टेम्परेरी, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा बार बार, फिर 2-3 बार कोई भी चीज जो है। हाँ हैंड राइटिंग में कोई भी चीज को आपको कंफर्म करने के लिए 2-3 जगह उसका रिपीटेटिव एक्यूरेसी देखना पड़ेगा, उसका सपोर्टिंग फीचर देखना पड़ेगा, तब वो ट्रेड्स जो है वो प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा बहुत पेन होता है, कई बार गैस बन गई उस समय लिखते समय, या उस समय हो सकता है कुछ प्रॉब्लम था, पेट ही खराब था, तो वो भी चीज आ जाएगी उसमें, बट वो परमानेंट नहीं होगी। तो आपका जो परमानेंट ट्रेड्स एंड टेम्परेरी ट्रेड्स में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए उसको रीएस्टेब्लिश करना है, उसके सपोर्टिंग फैक्टर देखना है, रिपीटेटिव एक्यूरेसी देखना है, उसके बाद उसको बोलने का है। कोई भी एक चीज छोटी सी मिल गई उससे कंक्लूड नहीं कर देना है, ये हमको, ये बेसिक प्रिंसिपल है ग्राफोलॉजी। आपको कुछ चीज दिखती है, ठीक है, उसको देखिए, बट उसको फिर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको। सर एल, लव का एल जो है उसका वेवी स्ट्रोक नीचे का क्या कहेगा? लव में एल जो है सेकंड सिग्नेचर में, और लव में इनका डिप्रेशन है, आप देखिए जब
यहाँ नहीं, लव, यहाँ पर, हाँ ये यहाँ पे, ये इधर पे तो देखिए ना, यहाँ पे लव में LUV लिखा है ना। लव में हाँ इनके साथ स्ट्रगल है, क्योंकि जब इवन जो बचपन में इनके जो बहन है वो तो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ओ वो और उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उसमें डिप्रेशन है, वो शी इज वेरी मच कंसर्न स्टिल। हाँ ये, अब ये देखिए अगेन, यहाँ पे देखिए, अब ये 2, 3 और 4 अगेन ये दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर्स, बहुत सिग्नेचर्स है, तो लीनियर एंड पॉइंटेड टू, इसमें वो तो खत्म ही हो गया। जो यहाँ पे था डी का, देखिए दोनों लीनियर थे, ये दोनों कर्व, कर्व लीनियर तो थोड़ा था बट कर्व थे, बट यहाँ पे दोनों कर्व खत्म हो गए, यहाँ पे देखिए प्योर लीनियर हो गए। तो ये जो स्ट्रेसफुल जो इनकी सिचुएशन रही, उसमें ब्रेक भी हुआ, तो ये देखिए यहाँ भी ब्रेक दी, यहाँ मिडिल में यहाँ ब्रेक दे रहे हैं, यहाँ भी ब्रेक दे रहे हैं। तो सर यहाँ ये पे जो, सिग्नेचर कब के हैं? दोनों सिग्नेचर के बीच के टाइम के हैं क्या? हाँ 20 के टाइम के, पेनफुल कंडीशन है जब इनके रिलेशंस चल रहे थे रणबीर के साथ में, और उस ओके समय ओके। तो ये सब उनके साथ, तो 3 and 4। So both signature has a linear pointed D with joint and size variation. Love letter K. इसमें के कैसा लिखा है? दीपिका में के देखिए नीचे फ्लैट हो गया है, इसका क्या है? हाँ, वो लिखा है 4th में, देखिए ना, love letter K in 3 and 4 become retraced and squeezed, tells about pain in love relationship. ओके K is the love letter, तो ये आ गया। तो अब आपको, ये आपके ऊपर है कि आप किस नजरिए से और कितना गहरा और कितने ज्यादा उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सर ये ग्राफों डिप्रेस की- होते हुए भी जिराफ पर्सनालिटी है ना? हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो जो बचपन से जो एक डिसीजन दिया हुआ है उनको, जो बेस दिया है उनके फादर ने दिया हुआ है, वो ही इनको खड़ा कर पाया, अदरवाइज ये डिप्रेस हो गए। जैसे वो हमारी, आप देखें बहुत सारी थी, सुष्मिता सेन थी, और भी बहुत सारे लोग, तो जो बॉलीवुड का जो प्रेशर है तो वो झेल नहीं पाते, वो अलग हो करेक्ट। जाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दोस थिंग, इवन ऐश्वर्या राय के साथ आप देखिए बहुत सारे सर टोल लेटर्स जो है वो हाइट ऑफ द बॉडी दिखाते हैं? हाँ, टोल because, लेटर, हाँ नहीं, टॉल लेटर्स लिव लार्जर देन लाइफ। ओके ये 7, अगर 5 टाइम्स तक, अगर जो मिडिल जोन का जैसे लेटर ए है मिडिल जोन का, इसका 7 to 8 टाइम्स हो गया, तो लिव देन लार्जर लाइफ। 3 to 5 टाइम्स नॉर्मल है, ठीक है, जो पहला लेटर है 3 to 5 टाइम्स होगा वो नॉर्मल है। बट यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ए को आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 से ज्यादा है, 7 टाइम्स से ज्यादा है हाइट। सो ये नेगेटिव शी हो इज गया। टॉलर आल्सो, शी इज टॉलर हाँ? आल्सो, टॉलर देन अदर। यस यस, ये अदर एंगल से देखें तो वो टॉलर बंदे लोग भी लंबा लिखते हैं, और ये जो है जिराफ पर्सनालिटी का ट्रेट कहलाता है, इसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, मतलब ये चीजों को प्रैक्टिकल नजर से नहीं दिख पाते। या सर इनका डी बीच में से शुरू होता है, जो टोटल हाइट है उसके बीच में से डी स्ट्रोक शुरू होता है। वही ब्रेक है ना, वही ब्रेक है, जबकि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देखिए पुराने वाले में, आप देखिए यहाँ भी बीच से स्टार्ट, यहाँ पे देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी बेसिकली आप देखिए डी का जो नॉर्मल हाइट होना चाहिए कैपिटल का, वहीं से स्टार्ट हो रहा है और वहां पे जाके मिल रहा है। सो बट इट इज नॉट इन लाइन, वो एक जाके बीच में जाके कहीं कनेक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे सेम पॉइंट में जाके एक क्रॉसिंग जैसे बन रहा है। यहाँ पे इधर पे आप देखिए रिट्रेस भी हो रहा है, क्रॉसिंग भी बन रहा है। वहाँ क्रॉस है सर, यस। हाँ राइट, तो उसे क्या कहेंगे? इसका मतलब यही है ब्रेक, कि ब्रेक है ना? ब्रेक, हाँ यहाँ इसको ब्रेक बोलेंगे, जबकि यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे फिनिशिंग स्ट्रोक है। अच्छा, ये फिनिश हो गया, जबकि यहाँ फिनिश नहीं हुआ। यहाँ पे तो जस्ट इट लुक्स लाइक ये ऊपर से नीचे आया है, यहाँ पे ब्रेक बन रहा है, कहीं एक लाइन है वहां पे ब्रेक हो गया। ये नेगेटिव क्योंकि उसमें शार्प क्रॉसिंग आ गई है, बट स्क्वीज क्रॉसिंग है, बेसिकली क्रॉसिंग मींस नेगेटिव हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है। चलिए अब ये बाकी पढ़ लें आप, जो पढ़ लेंगे सर, डोंट वरी। हाँ, ओवरकमिंग ये आप जो लोग बोल रहे हैं, ये पूरी कहानी मैंने इसमें यहाँ पे रेड में मार्क कर दी है। Yes, yes. 2015 में पादुकोण spoke about her personal experience of overcoming depression, and in October in the year she formed a foundation to create awareness of mental health in India, named the Live Love Laugh Foundation.
ये देखिए philanthropic में आ गए बाद में। धनुष, अभी देखिए जो जो धनुष जी हैं, धनुष जी ने पहले जो जो डी बनाया है, एक मिनट, हाँ, अब ये धनुष जी का नाम है वेंकटेश प्रभु कस्तूरी। अब इसमें इन्हें आप जो देखें, जो पहले पी को ज्यादा वो कर रहे हैं बेसिकली, डी जो है सेकंड उसमें जा रहा है, एंड डी बनाए भी तो डी का जो स्टेम है बहुत छोटा है, डिस्कनेक्टेड है। ये बहुत ही, ये क्या बोले कि गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, और पी उसी में बना हुआ है। तो मतलब फैमिली और ये दोनों इंटीग्रल एंड इंटरमिंगल पर्सनैलिटी है। और जो धनुष का जो बाकी लेटर्स हैं सब वो अंदर से आ रहे हैं, इट मीन्स वो अंदर छुपाते हैं, वो उस चीज को वो उनके अंदर में है। ही हाइड्स दोस थिंग्स ऑफ चाइल्डहुड, और वो अगेन क्रॉसिंग्स हो रही हैं। तो अभी आपने देखा ये धनुष का ये जो क्रॉसिंग है मीन्स सेल्फ नेगेटिव डिसीजन है। तो अभी इनका जो तलाक भी हो रहा है, ये जो रजनीकांत की बेटी के साथ शादी हुई है, कपल हैज अनाउंस्ड देयर सेपरेशन इन 17 जनवरी Yes, sir. 2022. So this is all basically a crossing. एंड धनुष में जो पी है वो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है, बट सरनेम सेपरेटली लिखा नहीं है, तो ड्यू वेटेज दिया नहीं है फैमिली लाइफ को। तो अगेन सेम जो है ये ओवर कॉन्फिडेंट है एंड क्रॉस कर रहे हैं चीजों को। तो बिकॉज ऑफ दैट द सिग्नेचर इज, सर वेंकटेश का वी कहीं नहीं है ना? कहीं नहीं है, कहीं नहीं, खाली पी आ रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं जो खाली फर्स्ट नेम लिखते हैं, देयर, सर आमिर खान लिखता है ना, आमिर। हाँ खाली वो रहते। Sir, as it is, Dhanush is not his born name. His name is Venkatesh, and South Indians don't write their name for first name first in the signature. इवन देन जो खाली पहला नाम लिख रहे हैं मतलब वो कॉन्फिडेंट रहते हैं और वो किसी की सुनते नहीं है, परिवार की भी नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। आमिर खान किसी की नहीं सुनता है। सर साउथ इंडिया में फादर का नाम नहीं लिखते हैं पहले? पहले गांव नहीं, साउथ इंडिया में पहले गांव का नाम लिखते हैं, फिर फादर का नाम, फिर अपना नाम। जैसे बेलापुरकर, बेलापुर एक गांव है, बेलापुरकर, उसके बाद फिर फादर का नाम होगा जो भी, उसके बाद फिर आपका नाम, फर्स्ट ऐसा होता है। सर आपने किसके लिए कहा परिवार की नहीं सुनते या किसी की नहीं सुनते? ओनली राइटिंग द फर्स्ट नेम। दे आर कॉन्फिडेंट, दे वो अगर वो फैमिली नेम कोई बंदा नहीं लिख रहा है, इट मीन्स वो अपने जो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली का सुनेगा नहीं, क्योंकि वो उसको वेटेज नहीं दे रहा है। वो सुनेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देगा। वो अपने गट फीलिंग से ही डिसीजन लेते हैं, वो दूसरे की एडवाइस को कंसिडर नहीं करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और आजकल के जमाने में जितने कंप्यूटर में जो काम करने वाले बंदे लोग हैं आईटी इंडस्ट्रीज में, आप देखें ये सभी लोग फर्स्ट नेम लिखते हैं, दूसरा नेम नहीं लिखते हैं। तो दे लिव इन, वो क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जब तक रहे 2 साल में 4 लोग बदल जाते हैं, मकान बदल जाते हैं और पार्टनर बदल जाते हैं। Sir, not only the IT field में काम करने वाले या XYZ adult ones, the children in school also they write only first name. They don't mention the father or surname name. I mean they don't mention. Even parents themselves write. अच्छा बच्चों के बुक पर जब कवर लगाते हैं ना नाम का लेबल वगैरह, तो they write only the name of the child. They don't write. Parents ही उनका नाम उनके नाम से लगा देते हैं, फिर फैमिली नेम नहीं लिखते हैं। एक्चुअली क्या है, वो फैमिली वैल्यूज हमारी डाउन हो रही ना, ये उसका असर है। और हम पहले तो 10-15 बच्चे होते थे तो फैमिली ही चलती थी, मतलब जो कजिन भी सगे के बराबर होता था। आजकल तो भाई ही नहीं होता तो सगे की बात ही नहीं है, हर चीज पर्सन ओरिएंटेड हो गई है और बच्चों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा मिल गया हुआ है, बहुत ज्यादा मिला हुआ है। हाँ, सो दे थिंक जो दुनिया है वो मैं हूँ, बाकी सब कुछ नहीं है। सर एक कॉन्सेप्ट भी चलता रहता है ना कि सरनेम लगाने से कास्ट पता लगती है एंड इट्स नॉट गुड थिंग, उसकी वजह से भी वो मना करते हैं। वो सूडो फियर है, वो सूडो फियर। हाँ ना आई नो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो इसको सपोर्ट करने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स देते रहते हैं।
नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो उनको हमको दूर करना है, उनको तोड़ना है हमको, क्योंकि जो आप कास्ट से बंदा पहचाना नहीं जाता, काम से पहचाना जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। राइट सर। हाँ, लोग अपने काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं जाने जाते। नाम तो पीछे आता है, काम के पीछे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बदलना है। जो दैट्स व्हाई जो ब्रांडिंग हम बोलते हैं, लेजिबिलिटी जो बोलते हैं, वो काम है, क्वालिटी है, वो कास्ट से या उससे नहीं आती। इनहेरिटेड स्किल आएगी, बट उसको भी तो करना ही पड़ेगा ना, एग्जीक्यूट तो आपको ही करना पड़ेगा, और उसको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास। सर हम Yes, हम sir. डिजाइन विकास कर नहीं रहे कर हैं सकते। बच्चों को। सर इट हाँ इज जी। प्रोग्रामिंग द चाइल्ड इन अ वेरी सेल्फिश मैनर। यस यस, अभी आप देखें ना, हर बच्चे का, पुराने जमाने में बच्चे पता ही नहीं लगता था कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, उसका बर्थडे आया है नहीं आया है, क्या नहीं हुआ। अब आजकल देखिए एक एक चीज प्लान होती है, बच्चे आने के पहले ही से बहुत सारी चीजें प्लान होती है। वो यस कौन सा सर। ड्रेस पहनेगा, क्या होगा, इवन बच्चा पेट में रहने से भी सेलिब्रेशन चालू हो जाते हैं। आजकल तो दुनिया भर की चीजें, तो बहुत ज्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ओवर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड जो फैमिली वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, वो हमारी बहुत कम होती जा रही है। एंड बिकॉज तो ये हमको बताना, आप जो कास्ट वाला जो फैक्टर है वो सेकेंडरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या है। अभी भीमराव अंबेडकर का नाम अगर रामजी राव अंबेडकर नहीं भी लिखते तो क्या फर्क पड़ता है, या अंबेडकर की सर जगह ये दूसरा मैं भी। नहीं कह रही हूँ, मतलब ये हाँ जो हाँ, लोगों मैम में आजकल के जो ये पेरेंट्स हैं वो गलत ऐसा धारणा, बोल रहे हैं। ये गलत धारणा हाँ है। बिल्कुल गलत है ये। गलत धारणा को हमको दूर करने का है, गलत धारणा है, इसको दूर करने का है। आप भले ही पूरा नाम लिखो, कुछ लिख दो, इनिशियल डाल दीजिए कम से कम। सर 8:10 हुआ है, हमें और कंटिन्यू करना है या आज हम यहाँ रुकते हैं? एक मिनट, कितने हो गए? अभी बहुत सारे बाकी हैं सर। बहुत सारे बाकी है, तो हम कल कर लें, कल सुबह, कल कल 10 बजे 11 बजे करीब। सबसे पूछिए। सर हाँ मुझे चलेगा सर, सर दिन में मैं चलेगा। मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं है सर, इवनिंग में पॉसिबल है। ये तो इवनिंग में कल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो सर टाइम लर्निंग जो है बता ना, दीजिए, मुझे मीटिंग्स रहेंगी। तो सेम 9:30 सात रात को 9:30 रखें सर, सब काम से निपट कर फिर। Yes, बाकी लोग। चलेगा, सर फिर 9:45 चलेगा, रख लीजिए, मेरी चलिए ठीक 9:45 तक मीटिंग होती है। ठीक है, ठीक ठीक है, तो हम 10 से 11 कर